Hi friends, welcome to my channel Double One Double One Tarot. I hope you are all are doing well. Okay, so अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जो है एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिट गाइड जो है हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। सो अभी ये रीडिंग उधर तक पहुंचेगी, ठीक है, जो मेरे चैनल से कनेक्टेड है और जो अब इस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। So abhi at this point of time, all the animal kingdom, okay, they are with us. Especially they are guiding us, right? All the like the hyena spirit, the elephant spirit, the dragon spirit, the rose pink dragon, the the wolf spirit, and especially the cat spirits. All right, the black cat spirits. So they all are actually coming towards us to guide us more, okay, because we are actually going ahead. All right, so we are actually because we all are trying to increase our energies, to increase our intuition, to raise our energies every second. Okay, so they are guiding us, like just to align with your soul purpose, and you are on the right track, and don't distract from your path, okay, because you are going good. All right, you are actually more than going good, that they were not expected, that the our spiritual team ने इतना expect नहीं किया था कि हम इतना जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उनसी उनके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जा रहे हैं अभी, ठीक है। सो एक्चुअली में अभी हम आज ये देखेंगे कि जिसने भी अभी कोई कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न को हील किया है, या कोई ब्लड लाइन हीलिंग करी है, या कोई एक मेजर अपनी पास्ट लाइफ की वुंड्स को हील किया है, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें अभी आगे कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आज हम वही, जैसे कि एनर्जीज को इंक्रीज करना, और द alchemization process. So alchemization is all about the manipulation of negative energy into positive energies. All right. So we know our potential, that we are we actually have the limitless potential. All right, and we are the spiritual beings. All right. So we are here to do something big. We are the chosen ones, and we are the part of that 1,44,000. All right, to raise the vibration of the Mother Gaia. All right, or could be the star seeds. All right, so we know that we have the limitless potential, and that phoenix is rising up from the ashes, and feel the feeling of the rising star. So all of these things are like connected with us right now. So at this point of time, we know that we have to raise our energies every point of time, so that we will not come down to our lower energies. All right, so we have to maintain our frequency and continuously raising it, okay, at every point of time. So अभी हम क्या कर रहे हैं कि अ, हम ये देख रहे हैं कि हम जो है, अगर हमारे कोई ब्लूप्रिंट्स हमारे अगर माइंड में रह गए हैं, जो हमने इतना बड़ा हीलिंग प्रोसेस किया, इफ देयर आर सम ब्लूप्रिंट्स इन आवर माइंड, सो हाउ टू रिमूव दैट, ओके। So as we will actually continue with the violet flame, the guided meditation, which is a violet flame transmutation guided meditation. Okay, I'll actually share the link of that meditation in the uh, of that meditation, of that guided meditation, in the description, okay, box. My goodness, all right. So, I'm sorry, मैं अभी ठीक से कुछ बात नहीं कर पा रही हूँ, so I'm really sorry for that. So actually, what we do, if we have some blueprints, okay, in our mind, so how we can remove that? We actually guide on the violet flame, guided meditation. We will listen to that. We will concentrate on for next 10 minutes. Okay, we'll concentrate the violet flame on those areas. Actually, it will actually it will go to those areas, okay, where it is needed. एंड देन सो आज हम इसको ना ऐसे समझेंगे कि टैरो के माध्यम से, बेसिकली, ओके। सो टैरो के माध्यम से ना मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ कि इसमें एक्चुअली हम जो इसको प्रोसेस को कहते हैं ना, वो है बिकॉज द द एक्चुअली this the meditation, all right, the violet flame transmutation,
okay, guided meditation. So we have started with the meditation. All right, so we take the violet flame and put on the, you know, those areas on the blueprints of those of the mind. Okay, so हम वहाँ पे जो है ये लाइट को डाल रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लाइट को डाल रहे हैं तो उसमें हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ट्रांसम्यूटेशन का। ओके, सो उस ट्रांसम्यूटेशन क्यों, उसमें क्यों ये कह रहा है कि यू नो ट्रांसम्यूटेशन, यू नो ट्रांसम्यूटेट क्या करता है, ट्रांसम्यूटेशन बेसिकली यू नो एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यू नो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, यू नो हम मेडिटेशन तो यू नो सुन लेते हैं, यू नो ट्रांसम्यूटेट कर रहा है, लेकिन हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको थोड़ा सा ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। सो इसमें हम 7 टैरो कार्ड्स लगाएंगे। हमने वैलेट फ्लेम डाली अपने दिमाग में, ठीक है, वो सुनना हमने 10 मिनट का मेडिटेशन। और फिर हम पहला कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से हम उसको ऐसे चक्र को घुमा देंगे कि वो जो ब्लू प्रिंट्स हैं वो हट रहे हैं, ठीक है। और ब्लू प्रिंट्स हट रहे हैं, हट रहे हैं, हट रहे हैं, ठीक है, उस पर हम मेडिटेट करेंगे, ठीक है, 10 मिनट। अब वो मेडिटेशन सुन के उसके बाद हम इस वाले कार्ड पे ध्यान लगाएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून वाले कार्ड पे, ठीक है। और जैसे ही हम ध्यान लगाएंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि हम टेम्परेंस में टैप इन कर दिए, ठीक है, विच इज़ द ऑल अबाउट द बैलेंसिंग का कार्ड, ठीक है, जो कि आर्कएंजल माइकल इसमें दिखाए गए हैं। आर्कएंजल रफाल के विंग्स हैं। आर्कएंजल रफाल के विंग्स क्या कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमने चक्र घुमाया वो हटा और वहाँ पे उन्होंने उनको हीलिंग दी, आर्कएंजल रफाल के विंग्स ने, ठीक है, उन्होंने उनको हील किया और फिर उसको आर्कएंजल माइकल ने उसको बैलेंस कर दिया, बिकॉज आर्कएंजल माइकल इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड द प्रोटेक्शन। ओके, सो आर्कएंजल माइकल ने वहाँ पे उसको बैलेंस किया, प्रोटेक्ट किया, और वो जो है वहाँ से हील होके एक बैलेंसिंग की ऊर्जा में आ गए, ठीक है। अब माइंड हमारा बैलेंस है, ब्लूप्रिंट सारे हट गए हैं, हीलिंग हो गई है बाय द आर्कएंजल रफाल एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आर्कएंजल माइकल। उसके बाद हमने लगाया जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो जजमेंट के कार्ड में है आर्कएंजल गैब्रियल, तो वो सब हो गया। उसके बाद में आर्कएंजल गैब्रियल हमें कह रहे हैं कि आई गिव यू द कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब, ओके, and they are blowing, and Archangel Gabriel is blowing the trumpet, and then we say that, okay, thank you, I accept your congratulations, Archangel Gabriel, I feel so great, I feel so amazing, okay, from inside I feel more energetic, so thank you for the trumpet। एंड देन उसके बाद हमने टू ऑफ कप्स का कार्ड लगाया, जिसमें कि हमारी जो हम अपने आप को यू नो एक जो इम्बैलेंस था उसको हमने बैलेंसिंग कर दिया, तो हम अपने आप को एक बहुत ही यिन यांग के बैलेंस में हम अपने आप को फील कर पा रहे हैं। और इसके ऊपर जो आर्कएंजल रफाल के विंग्स हैं वो यही कह रहे हैं कि यस यू आर हील्ड नाउ, ऑलराइट, आई गिव यू द हीलिंग, सो यू आर हील्ड नाउ, feel the healing, okay, which I have given you. Now your yin and yang is balanced and now you are healed. उसके बाद हम 6 of cups का कार्ड लगाएंगे, which is all about unconditional love. So now you are healed. Now you can share this you know the unconditional love with others. And then उसके बाद हम लगाएंगे 11 का कार्ड, 4 of wands, ठीक है, which is 11 which is a new beginning. So now I am ready for a new beginning. And then उसके बाद हम लगाएंगे 3 of cups का कार्ड, which is all about soul celebration. Now my soul is in celebration mode, okay, I am celebrating with my soul because I feel happy, contented and balanced from inside with the blessings of archangels. तो ये 7 कार्ड पे हम जो है ट्रांसम्यूटेशन के इस जो गाइडेड मेडिटेशन हमने लगाया वैलेट फ्लेम वाली, उसको हम 10 मिनट सुन के इस 7 कार्ड्स पे मेडिटेट करके व्हाइल यू नो फॉलोइंग दीज स्टेप्स, और हम यहाँ पे इसको एंड कर देंगे, ठीक है, दैट आवर सोल इज इन सेलिब्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे
ट्रांजिशन पे, ठीक है। सो ट्रांजिशन पे जाने से पहले एक्चुअली मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है, ओके। सो ये है द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जो हमने मेडिटेशन से स्टार्ट किया। ट्रांसमिटेशन वाली वायलेट फ्लेम वाली मेडिटेशन लगाई और हमने अपने सोल को सेलिब्रेशन के अबंडेंस के मूड में हमने ले आया, ठीक है। और जब हमने कर रहे हैं ये सब जो प्रोसेस हमने किया, द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये कौन सी बड़ी पिक्चर का प्रोसेस है? इट्स एक्चुअली हमने एक चीज़ को एक सेलिब्रेशन के मूड में हम ले आए अपनी सोल को, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये किया क्या, ठीक है, वायलेट फ्लेम लगा के ट्रांसमिटेट किया और हमने जो है एक चीज़ को ब्लूप्रिंट जो भी थे दिमाग में उसको जो है हमने सोल की सेलिब्रेशन वाली स्टेज पे हम ले आए। So basically on a larger scale what we are doing a spiritual decoding, all right, or the code bearer or a तंत्र साधना, ठीक है। तो बहुत सारे नाम है इसके। और ये है क्या? इट्स एन एंशियंट स्ट्रक्चर्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यूटिलाइजिंग मंत्रास, यंत्रास एंड रिचुअलिस्टिक टेक्निक्स, ओके। और स्ट्रक्चर्ड जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या आएगा? ट्रांसम्यूटेशन के बाद आएगा ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी एंड देन ट्रांसेंडेंस, ओके। और मंत्रास भी होते हैं इसमें, हम मंत्रास पहले हम आज इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। और जो मंत्रास होते हैं जैसे उस मंत्रास की शुरुआत कैसे होती है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी मंत्रास के लिए, ओके। आई विल ऐड जस्ट लेटर ऑन। तो इस पे मैं अब जो है इसी वाले जो टॉपिक पे जो है स्पिरिचुअल डिकोडिंग पे जो है हम इसमें थोड़े से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और यंत्रास क्या है कि यंत्रास आर बेसिकली जैसे काइंड ऑफ और इसमें जो है स्पिरिचुअल कुछ रिचुअलिस्टिक टेक्निक्स भी होती हैं, ठीक है ना। अगर हम स्पिरिचुअल डिकोडिंग के प्रोसेस को पूरा से समझें तो कुछ रिचुअलिस्टिक टेक्निक्स भी होती हैं। अब रिचुअलिस्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं कि जैसे हमने वाटर लिया, ठीक है। मैं ये पहले इसलिए समझा रही हूँ क्या कि तुम्हें आगे के जो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का जो टेक्निक्स हैं वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो रिचुअलिस्टिक टेक्निक्स में क्या होता है कि पहले हम एक वाटर लेते हैं, ठीक है। वाटर इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें खुशी होती है, ठीक है। तो पानी को हम ऐसे, नदी होती है, हम हॉरिजॉन्टल शेप में पानी को ऐसे बनाते हैं और उसमें जो है हमने फायर ऑब्वियसली वर्टिकल ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है ना। तो पानी में जब हम ऐसे फायर को ऐसे जलाते हैं ऊपर की तरफ, व्हेन वी लिट द फायर इन वाटर, ओके, इट एलिवेट्स आवर थॉट्स एंड हील आवर सेल्फ, ठीक है। तो हमारे जो भी सोच होती है या जो भी हमारे विचार होते हैं उनको एनहांस करती है, ठीक है। जब भी हम कभी देखते हैं ना कि बाहर बहुत सारी नदी में आग हम ऐसे लगाते हैं तो हमें हमारी थॉट्स को एलिवेट करती है, इट एलिवेट्स आवर थॉट एंड हील आवर सेल्फ, ओके। तो हमने इसमें जो बड़े पैमाने पे ऐसे रिचुअलिस्टिक टेक्निक्स करते थे इन एंशियंट टाइम्स, जैसे शमानिक हीलर्स हो गए, या पहले भी जो बहुत सारी एंशियंट ऐसे हीलिंग्स होती थी, जिसमें कभी वोल स्पिरिट का भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो हमें जो हीलिंग देते हैं, जो भी अभी इस फ्रिक्वेंसी से मेरे जुड़ा हुआ है चैनल पे, तो वो भी हीलिंग देख सकता है, ठीक है। आई विल ऑल्सो ऐड दोज लिंक्स, ऑलराइट। सो इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो हमारी अब हमने वो बेसिकली किया क्या, उसमें जो हमने वो आग लगाई पानी के अंदर और उसने हमारे थॉट्स को एलिवेट कर दिया। मतलब कि हमने जो अपनी पानी क्या है, पानी एक्चुअली इज बेसिकली मतलब कि, ठीक है, अभी हम इतना समझते हैं, ठीक है, ये मैं बाद में समझाऊंगी ये वाला पार्ट, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये इतना किया और हम ये जो बड़े पैमाने पे ऐसे करते हैं वो समय कौन सा चुनते हैं, ओके। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए टाइम कौन सा होता है, ठीक है। और बेसिकली हम जो करते हैं मंत्रास भी करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, तो
ठीक है वो भी समय, लेकिन ये तो तुम अपने घर में तो कभी भी कर सकते हो, यू नो, वो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लाइक यू नो मंत्रास भी होते हैं, मंत्रा स्टैंटिंग भी होती है, यू नो। लेकिन जो पहले के हम एंशंट की बात कर रहे हैं, जो शमानिक हीलर्स टाइप होते थे ना, शमानिक हीलर्स जो शमानिक हीलिंग करते थे, ठीक है। मंत्रास का लिंक जो है वो मैं बाद में डालूंगी, जैसे कि हम ओम सरस्वती नमो नमः से जो है अपनी जो है, जो बहुत हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं या ब्लड लाइन हीलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ओम सरस्वती नमो नमो से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो मंत्र इसका धीरे धीरे मैं लिंक जो है उसमें ऐड करती रहूँगी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ इसका जो है टाइम और एक यंत्रास वाला चीज़ बताना चाह रही थी, ओके, विच इज, सो टाइम होता है बेसिकली इट्स अ ट्वाइलाइट जोन, ओके। ट्वाइलाइट जोन इज बेसिकली इट्स द इवनिंग टाइम, ओके, व्हेन वी कनेक्ट, so it's the evening time we connect our elevated thoughts with the light of sound. लाइट ऑफ साउंड कहाँ से मिलती है हमें, जो हमारे यंत्रास हैं, ठीक है ना, जो कुछ यंत्रास भी यूज करते हैं, जैसे कि यू नो आई हैव टेकन इट टू शंखनाद, ओके, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल, ऑलराइट, यू नो, जो मेरे को स्पिरिट गाइड्स ने गाइड किया उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल गाइडेड रीडिंग, ओके, इट वॉज ऑल चैनल्ड, ओके, मुझे जो चैनल हुआ मेरे स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, ये उसके बेसिस पे मैं रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। तो जो जो मेरे को चैनल हुआ है अभी तक उसके बेसिस पे मैंने कलेक्ट करके ये मैं रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है, जो जो मेरे को चैनल हुआ। अब स्पिरिचुअल यंत्रास क्या है, शंखनाद, जैसे हम शंख बजाते हैं, ठीक है, हम शंख बजाते हैं, और हम ये शंख कब बजाएंगे, जब सूरज ढलने वाला होता है, ठीक है, तो उसके पहले जो लालिमा रह जाती है उसको हम कहते हैं ट्वाइलाइट जोन, ठीक है। तो उस समय पे जो है जब हम ये शंख बजाते हैं तो जो शंख की लाइट होती है, ठीक है, साउंड की भी एक लाइट होती है, सो द लाइट ऑफ साउंड, जब हम ये ऐसे शंख को बजाते हैं ना तो ध्वनि की भी एक रोशनी होती है, ठीक है। जब वो जो शंख की ध्वनि निकलती है ना, और जब वो उसकी रोशनी जो है उस पर पड़ती है, यू नो, जो हमने फायर लगाई वाटर पे, तो वो तुम्हारी जो यू नो थॉट्स होती है उसको बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देती है, ठीक है, विद दिस काइंड ऑफ टेक्निक। इट्स वन ऑफ काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक, स्पिरिचुअल रिचुअलिस्टिक टेक्निक, you know, which was actually followed by the shamanic healers mostly, all right, in the ancient times. And thank you World Spirit, because you know World Spirit was a very very you know powerful spirit, okay, जिससे कि हमें guidance मिल रही है, so thank you World Spirit, okay, for the guidance and all. And और you know, so ये जो होता है basically इट्स अ मंत्रास, सॉरी यंत्रास, मंत्रास नहीं, मंत्रास तो मैं बाद में डालूंगी, मंत्रास की यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हम स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और यंत्रास को हमने जान लिया कि यंत्रास क्या करते हैं। बेसिकली यंत्रास में से जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है वो है द लाइट ऑफ साउंड, ओके, द लाइट ऑफ साउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, द लाइट ऑफ साउंड और वाटर और फायर, ठीक है। अभी तक हमने इसका इस्तेमाल किया और एक समय का इस्तेमाल किया विच इज़ द शाम का समय, दैट्स इट, जब सूरज ढल रहा होता है तब, द लाइट ऑफ साउंड, समय, वाटर एंड फायर, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें जब पढ़ती हैं तो हमारी सोल को, हमारी जो थॉट्स हैं वो एलिवेट होती हैं, ऑलराइट। अब हम आते हैं ट्रांजिशन के प्रोसेस पे, ऑलराइट, क्योंकि ट्रांजिशन के प्रोसेस में ना हम वाटर और फायर को, इसलिए मैंने जो ये वाली रिचुअलिस्ट टेक्निक को यहाँ पे ऐड किया स्पेसिफिकली, ताकि तुम्हें जो है आगे का स्प्रेड अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ट्रांजिशन के प्रोसेस में हम पेज ऑफ कप्स का कार्ड ऐड करते हैं। पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट द कि जब हमारी सोल अबंडेंस की फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है, अब वो अबंडेंस है तो अब वो आगे बढ़ने को तैयार है, कुछ भी ट्रांजिट करेगी अब वो, ठीक है। ट्रांजिट मतलब कुछ और अपने आप को हमने अभी म्यूटेट किया, एक तरह से हमने कुछ नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव को, नेगेटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब वो कन्वर्ट हो गई है ऊर्जा, अब सोल अबंडेंस में है, तो अब वो ट्रांजिशन मोड में जा रही है, ठीक है। और ट्रांजिशन मोड में जा रही है तो उसको वहाँ पे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने अभी इस टेक्निक में सीखा, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट दैट योर सोल इज इन अबंडेंस, ओके। और इसमें जो नीचे रिवर दिखाई गई है पेज ऑफ कप्स के, ठीक है, सो ये रिवर यही कह रही है कि
अब मैं अबंडेंस में हूँ, नाउ आई एम इन अबंडेंस। ओके, और ये जो कप है इसके हाथ में, पेज ऑफ कप्स, इंसान के हाथ में ये जो कप है, तो वो इसकी एक्चुअली क्या है, एस ऑफ कप्स, जो इसको डिवाइन, जो एस ऑफ कप्स हम देखते हैं ना टैरो में, जो डिवाइन इसको दे रहा है, ये वही वाला कप है। ठीक है, तो जो वो इसने एक्चुअली अब एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, तो अब वो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसकी सोल अबंडेंस में है, तो वो कप लेने को भी तैयार है। ठीक है, जो डिवाइन इसको ऑफर कर रहा था, तो अब वो इसने वो ले लिया। अब इसकी सोल जो है इसको कह रही है कि नाउ एक्चुअली आई एम गिविंग यू एन ऑफर। ठीक है, कि अब जो है मैं तुम्हें एक ऑफर दे रही हूँ, कि क्या ऑफर दे रही हूँ, कि टू मूव अहेड। ओके, वो फिश जो है कप में से निकल के उसको उसकी तरफ देख रही है। ठीक है, सो फिश इज ऑल अबाउट कुछ ट्रांसम्यूट किया। ठीक है, जो ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस तुमने लगाया, वो फिश के रूप में, उस कप के रूप में वो उसे बता रही है। ठीक है, कि हाँ ट्रांसम्यूटेशन इज डन, और अब जो है मैं तुम्हें ये ऑफर कर रही हूँ कि अब तुम इस ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस से आगे बढ़ो। ठीक है, कि नाउ यू आर रेडी टू ट्रांजिट। ओके, तो वो अब वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब वो उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एंड नाउ ही इज रेडी टू मूव अहेड एंड कनेक्ट विद फायर। ओके, तो अब वो फायर से जुड़ रहा है। फायर इज ऑल अबाउट किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक वी आर टेकिंग द स्पार्क ऑफ द डिवाइन फायर, और ये कहाँ पे होती है, हमारे हार्ट चक्रा में होती है। ठीक है, जो हमने जो रिचुअलिस्टिक टेक्निक में जो एक्चुअली जो वाटर है वो हमें वो हमें एक्चुअली क्या बता रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो हमें यही सिग्निफाई कर रहा है कि भाई हम किसी अबंडेंस में जो है, एक अबंडेंस की ऊर्जा को हम ले रहे हैं एक वाटर के फॉर्म में। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है ना, सोल अबंडेंस का कार्ड। ठीक है, मतलब एक वाटर, एक हमने हैप्पीनेस को लिया, जैसे मैंने बताया ना, वाटर इज इक्वल टू हैप्पीनेस, तो हमने एक्चुअली हैप्पीनेस में अपनी जो है स्पार्क ऑफ डिवाइन की फायर को हमने लगाया, मतलब जो हार्ट चक्रा से आती है, तो टैरो में उसे हम क्या बोलेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो वो हमने वहाँ से ली, हार्ट चक्र से उठाई, और हमने जो हमारी पैशनेट सोल थी, क्योंकि अब सोल हैप्पी है तो उसमें पैशन भी है, और हम इग्नाइट द पैशन कर रहे हैं अब। ठीक है, लाइक तो हमने वो वाली जो हार्ट चक्रा से वो जो, क्योंकि वो वाली स्पार्क उठाई हमने, और हमने वहाँ से उठा के, ठीक है, वो वाली स्पार्क को हमने पानी में वो उस रिचुअलिस्टिक टेक्निक में लगाया, तो उस तरह से वहाँ पे जो है वो थॉट्स को उसने एलिवेट किया। तो थॉट्स को एलिवेट किया, तो उसके बाद आएगा किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, सो किंग ऑफ सोर्ड्स बेसिकली इट्स द जब हम अपने थॉट्स को मास्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने एलिवेट कर दिया अपने थॉट्स को, तो हम अब वी हैव मास्टर्ड आवर थॉट्स, वी एलिवेटेड आवर प्योर कॉन्शियसनेस। सो इसलिए हम किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने ट्रांजिशन के प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक 7 और 3 10 कार्ड लगाए। ठीक है, नाउ वी हैव मास्टर्ड आवर थॉट्स। ठीक है, अब हमारी थॉट्स को कोई बीट नहीं कर सकता, अब हमारी थॉट्स के साथ कोई खेल नहीं सकता। ठीक है, अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में इतने बड़े जर्नी के जो तुमने हीलिंग करी है, अब उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, अब तुम सबको बीट करोगे। नाउ यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर अनबीटेबल। ऑलराइट, नो वन कैन टेक पंगा फ्रॉम यू नाउ, बिकॉज यू आर किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब तुमने अपने थॉट्स को जो है एलिवेट कर लिया है। ठीक है, तो हम इस स्टेज को क्या बोलेंगे, कि हम अब अपनी सोल की खुशी में, ठीक है, जब हमने सोल की खुशी में हार्ट चक्रा से, ठीक है, जो पेज ऑफ कप्स हो गया सोल की खुशी, और हार्ट चक्रा हो गया जो हमने डिवाइन फायर ली, तो वो हो गया किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो हमने आत्मा की खुशी में पैशनेट फायर को लगाया, सो सोल हैप्पीनेस प्लस पैशनेट फायर इज इक्वल टू वी एलिवेटेड आवर प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, दैट्स हाउ वी एलिवेटेड आवर थॉट्स।
ओके, सो यहाँ पे जो है हम इसको ख़त्म करेंगे, विच इज़ द ट्रांजिशन प्रोसेस। और ट्रांजिशन प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे अब ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, अब जो है कुछ भी हमने जो है मास्टर कर लिया अपने थॉट्स को, अब हम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें कुछ ट्रांसफॉर्म करना है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव एंड conscious, we are actually focusing on positive and conscious changes. Okay, so फिर हमने डेथ का कार्ड लगाया, विच इज़ द पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, जो कि है 13 नंबर। सो 13 नंबर के बाद जब हमने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगाज़ कर दिया तो हमने उसको अचीव कर लिया। अब जब हम फोकस कर रहे हैं कॉन्शियस एंड पॉजिटिव चेंजेस की तरफ, तो हमने कुछ चीज़ें अचीव करें। ठीक है, हमने अपने थॉट्स को मास्टर कर लिया। अब हम कौन सी ऊर्जा में आ गए? रिसीविंग की ऊर्जा में। नाउ वी आर रिसीविंग समथिंग। ऑलराइट, अभी तक तो हम कुछ रिसीव ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नाउ वी आर इन मोड ऑफ रिसीविंग। तो अब रिसीविंग के मोड में हम क्या क्या हैं, हमने उसको लगा दिया ऊपर सबसे टॉप पे, मैजिशियन। ठीक है, अब हम मैजिशियन हैं, अब हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऑल्टर पे सोल्स भी हैं, हमने अपने सोल्स को भी जो है मास्टर कर लिया। हमने कप्स की भी ऊर्जा है, सोल उसकी अबंडेंस में है। ठीक है, और वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, हमने अपनी फायर को भी जो है बढ़ा लिया। ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन एंड बाय ऑल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स, क्योंकि हमने चक्रास तो ये एक्चुअली हम थोड़ा सा कैसे किया, इसका जो है लिटिल अबाउट मंत्रास एंड चक्रास को कैसे हील किया जाता है और चक्रास को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, वो उसके वीडियोज़ भी मैं धीरे धीरे इसके साथ मैं लिंक करती रहूँगी। ठीक है, तो वो हमने लगाया इसमें, तो इसलिए उसके ऑल्टर पे वॉन्ड्स भी हैं। ठीक है, सो कप्स, वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स। एंड अब जो है एक रह गया पेंटिकल, विच इज़ द मदर कॉन्शियसनेस, या फिर पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट अबंडेंस, पेंटिकल इज ऑल अबाउट मनी, पेंटिकल इज ऑल अबाउट अर्थ एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि कप इज ऑल अबाउट इमोशंस, वॉन्ड्स इज फायर, सोर्ड्स इज थॉट, सो ओनली अर्थ इज मिसिंग। दिस इज द फिजिकल मनी जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, सो पेंटिकल इज ऑल अबाउट फिजिकल मनी। सो नाउ अब हम उस स्टेज पे हैं कि अब जो है फिजिकल मनी इज कॉलिंग, नाउ वी आर इन द रिसीविंग मोड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उसके बाद हमने लगा दिया। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट अबंडेंस की ऊर्जा, प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा, मदर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा। ठीक है, सो नाउ दे आर कॉलिंग यू। ठीक है, क्योंकि हमने जो है एस ऑफ पेंटिकल्स को एक्सेप्ट किया, जो हम डिवाइन हमें एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर कर रहा था, हमने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक्सेप्टिंग मोड में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सेप्टिंग मोड में ही नहीं हैं तो जो भी डिवाइन हमें ऑफर कर रहा है वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें एक्सेप्टिंग मोड तक रीच करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हम उस रीच में ही नहीं थे। ठीक है, कोशिश कर रहे थे लेकिन रीच में नहीं थे, अब हम रीच में आ गए हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए जो एस ऑफ पेंटिकल्स, जो डिवाइन हमें पेंटिकल ऑफर कर रहा है, अब हम उसको रिसीव करने को भी रेडी हैं। ठीक है, हमने वो ऑफर लिया और हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हमने टैप इन किया। नाउ माँ लक्ष्मी इज कॉलिंग। ओके, और माँ लक्ष्मी कॉल करके हमें ये बता रही है कि नाउ यू आर थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का बैलेंस। ठीक है, अब हम एक बैलेंस स्टेट में हैं। ठीक है, बैलेंस स्टेट में इसलिए क्योंकि हमने अपनी सोल को अलाइन कर लिया है। ठीक है, और सोल को अलाइन कर लिया, इसलिए हम बैलेंसिंग स्टेट में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे अचीव करी। ठीक है, और हमने 4 कार्ड लगाए, मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमने 10 लगाए थे और एक 13 आ गए, तो 13 इज़ अ डेथ कार्ड, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो 13 एंड प्लस 4 17, और उसके बाद हमने लगाया 17th कार्ड, विच इज़ द स्टार कार्ड।
Okay, so star card is saying that, now actually you know who you are. All right, so you are a star seed. You are here to plant the new seeds, okay, in your generational line, so that it will be get benefit, you know, for the next few generations, because you are a old pattern breaker. All right, you need to plant some new seeds now. All right, so your our star guardian angels, okay, are helping us. Okay, star guardian angels are guiding you at this point of time. Okay, because this is a channel reading. Okay, एंड उसके बाद जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट कर दिया. हमने ये चीज़ें जो हैं अचीव करी. अब हम जा रहे हैं टेलीपोर्टेशन पे. टेलीपोर्टेशन क्या होता है कि जब हम, जैसे कृष्ण जी करते थे, हम कृष्ण जी को देखते थे वो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाते थे. ठीक है, तो उनके पास वो कौन से प्रोसेस से करते थे? थ्रू द टेलीपोर्टेशन टेक्निक. ऑलराइट, अब टेलीपोर्टेशन में एक्चुअली हमने 2 कार्ड्स लगाए हैं. ठीक है, सो बेसिकली मैं थोड़ा सा ये भी बताना भूल गई, कि स्पिरिचुअल इसमें होता क्या है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, सो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ट्रांजिशन. ओके, एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ठीक है, ये भी मैं थोड़ा बाद में ऐड कर दूंगी, लेकिन अभी जो है स्पिरिचुअल टेलीपोर्टेशन. ठीक है ना, सो स्पिरिचुअल टेलीपोर्टेशन इज लाइक ठीक है, इसको हम अभी टैरो से ही समझते हैं. ठीक है, सो टैरो में बेसिकली क्या है कि हम इसमें 2 कार्ड लगाएंगे, विच इज़ द सन कार्ड एंड द हाई प्रेस्टेस. ठीक है, क्योंकि अब हमने जो जो अचीव किया था वो है मैजिशियन, पेंटिकल्स और माइंड एंड बॉडी स्पिरिट का अलाइनमेंट. ठीक है, तो हमने जो है 17 पे ख़त्म किया था द स्टार कार्ड पे, और स्टार कार्ड पे हमने जो ख़त्म किया वो बेसिकली इट वाज 17. ठीक है, और टैरो में 17 के बाद जो कार्ड आता है वो आता है 18th का. ठीक है, विच इज़ द मून कार्ड. इट्स ऑल अबाउट डिसेप्शन, धोखे का कार्ड. ठीक है, इल्यूजन्स का कार्ड, भ्रमों का कार्ड. ठीक है, तो हमने उसको नलिफाई कर दिया. ठीक है, तो इसलिए हमने मून को हटा के 18 को हटा के ये सब करने के बाद, क्योंकि हमने अभी क्या क्या अचीव किया, हमने ट्रांसमुटेशन कर दिया, हमने ट्रांजिशन कर दिया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि हम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने ख़त्म किया. ठीक है, तो हमने पॉजिटिव हमने एक्चुअली अपनी मास्टर थॉट्स को मास्टर किया. थॉट्स को मास्टर करने के बाद हमने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में टैप इन किया, और हमने ये सारी चीज़ें अचीव करी. तो जब हमने सारी अचीव कर ली तो हमने कुछ तो काटा वहाँ से. ठीक है, तभी हमने कुछ अचीव किया. ठीक है, तो हमने क्या काटा? हमने मून को काट दिया. ठीक है, विच वॉज द 18th कार्ड, डिसेप्शन का कार्ड. मून इज़ ऑल अबाउट तुम्हारे दिमाग में धोखे. राइट, दिमाग से धोखे, बाहर धोखे, सब जगह से धोखे. राइट, तो मून ये कहता है कि अब तुम हट जाओ. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये कह रहा है, स्टार ये कह रहा है कि अब जो है हमने अपने थॉट्स को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन में टैप इन कर दिया. अब हम कुछ हटा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ रिसीव किया तो हम कुछ हटा रहे हैं. हमने वो कार्ड हटा दिया, उसके बाद हमने टेलीपोर्टेशन में टैप इन किया, विच इज़ द बाय द सन कार्ड. ओके, सो सन कार्ड, और उसके बाद हमने लगाया, because sun card is 19 and 19 is 9 plus 1 is equal to 10, 1. okay, 1, and then उसके बाद हमने second card लगाया, which is the high priestess, all major arcanas. so ये 2 कार्ड लगेंगे teleportation के process में, which is the sun card and the high priestess. so sun card क्या है? एक रोशनी, light. okay, इसमें है light, abundance. ठीक है, बहुत सारे पैशनेट हो जा. बच्चा जो है घोड़े पे बैठ के हंस रहा है, खेल रहा है. राइट, इट्स ऑल अबाउट लाइट, एक हैप्पीनेस की ऊर्जा. अब इसमें सिर्फ लाइट है. अब ये क्या है? सिर्फ लाइट, ओनली लाइट. अब इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ रोशनी है ये. ठीक है,
द सन कार्ड हमें क्या कह रहा है, मैं सिर्फ रोशनी हूँ और मेरे में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा कार्ड क्या कह रहा है, हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस इज लाइक एनहांस्ड इंट्यूशन, जिसकी इंट्यूशन इतनी हाई है, इतनी हाई है, इतनी हाई है कि अब उसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एनहांस्ड इंट्यूशन, ओके। हाई प्रिस्टेस, ओके, जो सिर्फ अपने इंट्यूशन को ही सुनती है, ठीक है, और किसी को वो सुनती ही नहीं है। उसको अपने ट्यूशन पे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि वो अपने ट्यूशन के बेसिस पे ही यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। सो हाई प्रिस्टेस इज हाई प्रिस्टेस, ओके। सो हाई प्रिस्टेस इज ऑल अबाउट द एनहांस्ड इंट्यूशन, ओके। तो ये दो कार्ड के बेसिस पे ही ना एक्चुअली लाइट और अपनी एनहांस्ड इंट्यूशन की पावर के बेसिस पे जो है कृष्णा जी करते थे टेलीपोर्टेशन, ओके। क्योंकि उनके अंदर इतनी रोशनी थी, इतना तेज़ था, इतना चमक था, ठीक है, और उनकी इंट्यूशन इतनी हाई थी, तो उसको जो है वो बढ़ा बढ़ा के अपनी अपनी सोल की कॉन्शियस को इतना वो एनलाइटन सोल थी एक तो वैसे ही, और एनलाइटन सोल के नाते उनकी इंट्यूशन इतनी हाई थी और इतना तेज़ था उनकी सोल में, इन दो चीज़ों के बेसिस पे वो अपने आप को कहीं पे भी ट्रांसेंड कर देते थे, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ टेलीपोर्टेशन। तो इन दो कार्ड पे जो है हम टेलीपोर्टेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। विच इज़, हमने अभी कितने कार्ड लगाए, 13 पे हमने ख़त्म कर दिया था, 4 17 और 14 15 16 17, और 17 कार्ड पे हमने स्टार लगा दिया था, 18 हमने हटा दिया था, 19 और 1 और 2, तो हमने अभी लगा दिए 19 और जमा 2, तो अभी हमने 21, ठीक है, 21 कार्ड लगा दिए। सो 2 + 1 = 3, और उसके बाद हमने 3 लगा दिया एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। तो अब हम आ गए टेलीपैथी के प्रोसेस पे। तो टेलीपैथी के प्रोसेस में जब हम आते हैं, टेलीपैथी में हम एम्प्रेस को लगाते हैं, ठीक है। टेलीपैथी एक्चुअली होती क्या है कि टेलीपैथी इज ऑल अबाउट टेलीपैथी हो, what do we say to telepathy? All right, so we say like जब हम अपने थॉट्स के जरिए जैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, that's called the spiritual telepathy. So it is a non-physical direct communication of thoughts, emotions or information between minds, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कोई तो कोई भी कहोगे कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, पास भी बैठे हुए हैं, दूर भी बैठे हुए हैं, कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड अ टेलीपैथी, ओके। सो हम अपने थॉट्स के जरिए जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ठीक है, और जो कहीं पे जो कोई दूसरी ऊर्जा वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, वो कुछ वहाँ पे अपनी थॉट्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के ज़रिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन बिटवीन द माइंड्स, ऑलराइट। So that's called the direct communication between the minds. So spiritual telepathy, alright. अब इस spiritual telepathy में हम 2 cards लगाएंगे, alright. So the one is the Empress card, ठीक है, और Empress card को हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि Empress card में क्या है कि बहुत सारी क्या है इसमें अबंडेंस की ऊर्जा, ठीक है, और अबंडेंस की ऊर्जा है, तो इसमें जो है अबंडेंस है, तो एम्प्रेस के हाथ में क्या है कि बहुत सारी ग्रेस है, ठीक है ना, ग्रेस है, ठीक है, उसके हाथ में एक टॉर्च है जो कि कह रही है कि शी नोज, ऑलराइट, शी नोज मतलब उसको पता है कि वो कौन है, ठीक है, उसको पता है कि वो हाई प्रिस्टेस है, ठीक है, क्योंकि तभी हाई प्रिस्टेस के बाद आई है ना एम्प्रेस, ठीक है। एम्प्रेस में सब कुछ है, एम्प्रेस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, ऑलराइट, एम्प्रेस है वो, ठीक है। सो एम्प्रेस में सब कुछ है, मदर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा भी है, अबंडेंस भी है, उसको सब पता है, वो सब जानती है, ठीक है, कि वो कौन है, ठीक है। तो एम्प्रेस जो सब कुछ जानती है ना, जो थॉट्स, इमोशन, एक दूसरे से टेलीपैथिकली कैसे बात करनी है, ठीक है, उसको सब पता है एम्प्रेस को,
इसलिए हमने यहाँ पे ये एम्प्रेस का कार्ड लगाया है, ठीक है। और इस एम्प्रेस में कौन कौन सी ऊर्जा है कि तुम कौन हो, ठीक है। तो वो ये भी जानती है कि तुम कौन हो, ठीक है। तो टेलीपैथिकली इसलिए वो बात भी कर पा रही है। उसकी टेपेस्ट्री हमें ये बताइए कि हु आर यू, ऑलराइट। और इसमें जो प्लैनेट्स का सिंबल बता रहा है कि वो टोपोलॉजी से उसको कनेक्ट करवा रहा है, क्योंकि इसमें टोपोलॉजी भी ऐड होगी, टेपेस्ट्री एंड टोपोलॉजी, ऑलराइट। सो टोपोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हेन वी कनेक्ट विद द प्लैनेट सिंबल्स। और इसमें जो है ये सिंबल जो है ये वीनस का सिंबल दिखाया गया है इस एम्प्रेस के कार्ड में, ठीक है, जो हमें प्लैनेट सिंबल्स के साथ कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो जब हम प्लैनेट सिंबल से कनेक्ट होते हैं ना, तो बेसिकली हम अपने आप को और गहराइयों तक समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही समझदार और बहुत ही अबंडेंट और बहुत ही तेज़ ऊर्जा है एम्प्रेस की, ठीक है, क्योंकि इसके ये जानती है कि ये कौन है और तुम कौन है, ठीक है। ये कह रही है कि शी नोज, ऑलराइट। ये भी कह रही है कि हु आर यू, ठीक है। हु आर यू, उसके बाद हमने लगाया द एम्पर का कार्ड, ठीक है। तो ये कह रही है कि हु आर यू, ऑलराइट। और कह रही है कि आई एम द एम्पर, ओके। सो बेसिकली हमने इसमें जो है टेलीपैथी में दो चीज़ें लगाई, ठीक है, विच इज एम्प्रेस एंड एम्परर, ओके। द फर्स्ट इज एम्प्रेस and the second is emperor, okay. So empress, okay. और इसके बाद हमने लगाया emperor, ठीक है। So emperor is all about the strong leader, okay, the protector, the creator, powers, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एम्परर में। और एम्प्रेस में क्या है, इट इज़ एक्चुअली डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस और इंफॉर्मेशन बिटवीन माइंड्स, ओके। ओके, ओके, ठीक है। सो ये जो है हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे टेलीपैथी में, एम्प्रेस एंड एम्परर, कि तुम कौन हो, ठीक है। सो तुम कौन हो इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है, एंड पावर्स। और इसमें कौन सी ऊर्जा है एम्परर में, उसकी थ्रोट चक्र की, क्योंकि एम्परर है, लीडर है, तो बोलेगा, ठीक है, बोले बिना तो लीडर लीड नहीं कर सकता किसी को, ठीक है। तो एक तो उसमें जो है टेलीपैथी में दो चीज़ें आ रही हैं, एक एम्प्रेस, ठीक है, और एक एम्परर, ठीक है, टेलीपैथिकली, ठीक है। जब हम किसी से यहाँ बैठे वहाँ बैठे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे बात करने के लिए हमें जो है थॉट्स से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, इमोशंस से जुड़ना पड़ेगा, और बेसिकली हमें जुड़ना पड़ेगा इंफॉर्मेशन बिटवीन माइंड्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि हमने ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए एम्प्रेस में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमने थॉट्स को भी मास्टर कर लिया किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ,
हमने इमोशंस को भी जो है मास्टर कर लिया। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, इसमें अबंडेंस की ऊर्जा है। और हम जो हैं मैजिशियन के कार्ड को भी हमने अचीव कर लिया। तो मैजिशियन में भी वो सारी ऊर्जाएं हैं, ठीक है ना, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है तो उसमें जो है, तभी हमने इसको एम्प्रेस से इसको लिंक किया, ठीक है, कि अब ये जो है इसकी इंट्यूशन भी इतनी हाई है, ठीक है, इसमें वो लाइट भी है, इसमें वो तेज़ भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी येलो ऊर्जा है एम्प्रेस में, ठीक है। और शी नोज कह रही है कि आई नो दैट आई एम हाई प्रिस्टेस, ओके, शी नोज दैट हु आई एम द इंट्यूशन, आई एम द enhanced intuition, okay, I am the light, okay, and I am everything, okay. So उस everything के बेसिस पे इसके पास वो ताकत है कि ये किसी से भी जो है, किसी के इमोशंस को किसी के थॉट्स को, किसी के माइंड को ये रीड कर सकती है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें वो पावर है, वो शक्तियाँ हैं, ठीक है। और इसकी टेपेस्ट्री कह रही है कि तुम कौन हो, ठीक है। तो ये कह रही है कि आई एम अ लीडर, ऑलराइट। तो इसलिए हमने इसको एम्पर के कार्ड से जोड़ा। कह रही है आई एम अ लीडर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग लीडर, I am the empress, okay. So empress कह रही, who are you? So she is saying that I am the creator, क्योंकि इसमें creation की भी ऊर्जा है empress में। So she is saying I am the creator of, I am the creator here to create with the mother Gaia, okay. So I am the co-creator, okay. I am here to use my powers to create something new, okay, via my throat chakra. Throat chakra is my power, okay. So empress, और क्या कह रही है empress? empress में क्या है, बहुत सारा loving ऊर्जा, loving, caring, fun loving, ठीक है। तो वो संगीत को भी अपने साथ जोड़ रही है, ठीक है। उसकी जो इंट्यूशन है वो म्यूजिक के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है। सो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है, ओके। बिकॉज हु आर यू, एम्प्रेस कह रही है हु आर यू। सो उसका अंक कह रहा है एम्पर का कि आई एम द क्रिएटर, I am the strong leader. So the Ankh is, telling that I am here to co-create with the universe. और उसकी टेपेस्ट्री बोल रही है who are you? So who are you? Right? तो उसके हाथ में जो लेफ्ट वाला एप्पल है वो कह रहे कि I am the abundance. Alright? I am the flourishing energy. Okay, I'm here to bring I'm here to flourishes. I'm here to I'm here to, giving the flourishing urja. I'm here to flourish. Okay, I'm here to flourish. Okay. So और एम्प्रेस बोल रही है हु आर यू, उसकी टेपेस्ट्री पूछ रही है हु आर यू। सो उसके जो वो एम्पर के शूज बोल रहे हैं कि आई एम द अबंडेंस, ओके। सो एम्पर के शूज कह रहे हैं आई एम द अबंडेंस, ओके। सो इस तरह से जो है वो टेलीपैथिकली जो है वो बात कर सकती है इन वाले पावर्स के बेसिस पे, ठीक है। सो हम जो है टेलीपैथी को यहीं पर इन दो कार्ड्स के साथ ख़त्म करेंगे, एम्प्रेस एंड एम्परर, ओके।
और उसके बाद यहाँ पे हमने 21 कार्ड्स लगाए थे, सो 22 एंड 23 एंड 23 2 + 3 = 5, ऑलराइट। और उसके बाद हमने 5 का कार्ड लगाया विच इज़ द हेरोफेंट कार्ड। So Hierophant card is all about that I am the change, okay? I am the spiritual master, or I am the healer basically, all right? Who heals others, all right? So okay. So ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे आके जो है ट्रांसेंडल स्टेट को कुछ हम एक ट्रांसेंडल स्टेट को हमने कुछ अचीव किया, ठीक है, कि हम बेसिकली में अपनी ऊर्जाओं को इस्तेमाल करके उनको एनहांस करके हम अपने बारे में क्या जान रहे हैं, और हम यहाँ पे एक्चुअली में हमने कुछ अचीव किया, ठीक है। और जब हम कुछ अचीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसीव भी करते हैं, ठीक है। जब हमने कुछ अचीव किया तो हम अब रिसीविंग, हमने कुछ एक्चुअली जब कुछ हमने अचीव किया तो हमने कुछ रिसीव किया, ठीक है। जब हमने कुछ अचीव किया तो हमने कुछ रिसीव किया, ठीक है। और जब हमने कुछ रिसीव किया तो हम क्या बने, जब हमने कुछ किसी चीज़ को हमने जो है ट्रांसेंड किया, ठीक है, कुछ बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, ठीक है, कुछ अचीव किया, ओके, तो हमने किसी चीज़ को रिसीव किया, ठीक है, तो हमने खुद को एक्चुअली में रिसीव किया, ऑलराइट। आई एम रिसीविंग यू, ओके, मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ या करती हूँ, वट एवर, आई एम रिसीविंग यू बिकॉज you are transcending, all right, because you have achieved something, so I'm receiving you, all right, let me receive you because you have achieved, so let me receive you, all right। so जब हम रिसीव करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब हम ट्रांसेंड करते हैं और जब हम रिसीव करते हैं, ठीक है, तब हम बेसिकली अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, और तब हम जानते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे करने क्या आए हैं, ठीक है, कि हम हैं कौन और हम सही पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, ओके। ओके, सो बेसिकली ये कार्ड हमें ये बता रहा है हेरोफेंट का, ठीक है, कि you have actually done the healing, so basically you are the healer, okay, now in future you will heal others, all right, through the various mediums, psychic mediums, or through the जैसे जैसे तुम अपने जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें
holistic healing. Could be, right? But basically, you are a healer. You have a healing touch, all right? You can alchemize the energies. You are the change. You are the spiritual guide, all right? Because you know that you know how to awaken spiritually, okay? You have learned this thing, all right? So that's why you have faced these kind of challenges because you are on a soul mission, okay? It's your soul mission, all right? So Hierophant is all about the number 5, which is the change card, okay? कुछ चेंज का कार्ड, ठीक है? जब हम कुछ हील करते हैं तो हम कुछ चेंज करते हैं. सो healing is all about changing into positive energies, okay? Changing the Earth Mother Gaia. When we heal something, when we manipulate the energies from negative to positive, we enhance, all right? We enhance our vibration. We enhance the vibration of Mother Gaia when we do any kind of healing, okay? So we enhance. So enhancing Urja, enhanced illusion, the High Priestess, alright? This is you, High Priestess, okay? You are the change, you are the healer, you are here to heal others, okay? Heal you and then heal others, alright? So the healing is done basically, alright? So that is like, the transcendence process, okay? कि ट्रांसेंडल स्टेट में हमें पहुंचना कैसे है, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस क्या होता है. वन who channels their energy to help others achieve the balance, okay? हमने स्टार्ट भी वहीं से किया था, बैलेंसिंग से, ठीक है ना? और हीलर करता क्या है, बैलेंसिंग की ऊर्जा में सोल को पहुंचाना और फिर उसे आगे आगे ट्रांसेंड करते रहना, ठीक है? क्योंकि healing is a ongoing process, okay? Healing is an like a kind of evolution. जैसे evolution होता है ऐसे healing होती है. Healing is a kind of ongoing process, okay? So we need to actually heal ourselves, like because चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है? इसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगी इसके बाद में, ठीक है? मंत्रास एंड with the chakras healing and all that, all right? So I hope कि ये जो रीडिंग है with the help of tarot, okay, you understand a little bit कि ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन जो कृष्णा जी करते थे, टेलीपैथी, ट्रांसेंडेंस को हम टैरो से कैसे समझ सकते हैं, ठीक है? और इसमें अभी हम और क्या देखेंगे, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन एंड okay, so basically tarot is a very vast knowledge, ठीक है? It's all about when you look the tarot cards, all right, you channel the messages. How? From the High Priestess, from the enhanced illusion powers, okay? और जो भी इस चैनल से लगे हुए हैं, they are the earth angels or the स्टार सीड्स. तो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स जो हैं उनको चैनल करते हैं और फिर वो अपने थ्रोट चक्र के द्वारा बोलते हैं, ओके? सो एंजल्स वर्क थ्रू, वी आर द स्पिरिचुअल ट्रांसमीटर, ऑलराइट? हु वी आर द व्हाट एल्स, वी आर द स्पिरिचुअल ट्रांसमीटर एंड वी आर द डिस्कवरी चैनल, ओके? बिकॉज सत्य एक खोज, ठीक है? सो मोटा मोटा हम बहुत बड़ी चीज़ों पे, आई एम सॉरी माय बैड, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल डिकोडिंग, ऑलराइट? तो अभी हमने क्या किया, ये हमने सारा कुछ क्या किया, अभी हमने स्पिरिचुअल डिकोडिंग पे प्रोसेस को समझा, विच वॉज द एंशियंट स्ट्रक्चर्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ टैरो, with the help of yantras and ritualistic techniques.
मंत्रास एंड चक्रास जो है मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, ठीक है। अभी मुझे एक चीज़ और बतानी है, ओके। सो जस्ट बी विद मी, ओके। बिकॉज अभी क्या है ना, मेरे पास एक प्रॉपर जगह नहीं है, ठीक है। तो मेरे आसपास के लोगों के कारण मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके। व्हेन आई विल बाय माय ओन स्पेस, ओके, देन आई होप कि तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे चैनल वालों को, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ बेयर विद मी, ओके। सो क्या है ना कि अभी हमने यंत्रास और हमने जो है ट्वाइलाइट जोन को अभी हमने ऐड किया था, ठीक है। सो हमने क्या किया था, ट्रांसम्यूटेशन हमने कर लिया था, और राइट। और ट्रांसम्यूटेशन के बाद हमने और क्या किया था, बेसिकली हमने ना पेज ऑफ कप्स के बाद हमने ये लगा दिया था, ठीक है, विच इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था, टेलीपोर्टेशन हमने कर दिया था गाइस, और राइट। टेलीपैथी भी हमने कर दिया था, ठीक है। सो टेलीपैथी के बाद हमने टेपेस्ट्री भी लगा दिया, एम्पर भी लगा दिया, हमने ट्रांसेंडेंटल स्टेट को भी हमने अचीव कर लिया था, ठीक है। So now actually I am coming towards the these kind of basically the definitions, okay, it's very important actually. So अब हम इसको समझेंगे, ठीक है, okay. Because guys we are जब भी ये स्पिरिचुअल माता विश्व माता योग माया शक्ति अगर कुछ भी यहाँ पे चैनल पे समझाएगी, ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में और ऐसा समझाएगी कि पहली बारी में ही एक वीडियो देख के इंसान को समझ में आ जाए, दिमाग के अंदर घुस जाए उसके, ठीक है। अगर तो वो नहीं घुस रहा तो ये ऊर्जा तब तक समझाती रहेगी, क्योंकि ये ऊर्जा क्या है ना, एम्प्रेस है, शी नोज कि अगले के दिमाग में घुसा भी या नहीं घुसा, क्योंकि ये ऐसी टीचर है कि अगर एक बार बता के अगले के दिमाग में घुस भी नहीं रहा ना तो उसको घुसा के छोड़ेगी, ठीक है। और जब तक घुस नहीं रहा तब तक ये बोलती जाएगी, क्योंकि इसकी थ्रोट चक्र इसका पावर है, ऑलराइट। सो गाइस प्लीज़ अपने कोई सुसु पॉटे नहीं जाएगा, बैठो सारी जगह पे सब अपने अपने, ठीक है। तो कोई हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, ऑलराइट। सो कहाँ पे थे हम, सो बेसिकली वी वर हेयर, ऑलराइट। क्योंकि गाइडेंस है वैसे भी जो भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उनके घरों में भी ऐसे दिक्कत होगी ज़रूर तो हमें स्पेशली जो है एनिमल किंगडम से गाइडेंस आ गया है कि वी डोंट इवन एंगेज विद देम, ऑलराइट। वी शुडंट इवन एंगेज विद दोज काइंड ऑफ ऊर्जाएं जो कि हमें आगे सर्व नहीं करेंगे हमारे सोल मिशन में, ठीक है। सो हमें स्ट्रिक्टली उनसे एक हेल्दी बाउंड्री लगा के रखनी है। सो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल से जुड़ा है वो इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करे। I hope you all understand, okay. So please kindly follow this guidance. It's very important guys, alright, because our peace is non-negotiable, alright. और जो मंत्रास और जो चक्रास करने हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए वो भी मैं इसमें ज़रूर ऐड कर दूंगी, सो प्लीज़ स्टे विद मी, ओके। और स्ट्रिक्टली गाइडेंस है, डोंट इवन एंगेज विद दीज काइंड ऑफ ऊर्जा जो तुम्हारा जो है तुम्हारे फोकस को बिगाड़े, ठीक है। ऐसी ऊर्जाओं से बिल्कुल दूर हो जाओ, एक डिस्टेंस बना लो, मेंटेन अ हेल्दी बाउंड्री, ओके। सो गाइज वी विल स्टार्ट विद द स्पिरिचुअल ट्रांसम्यूटेशन, ऑलराइट। इसकी डेफिनेशंस पे अब अभी हम आएंगे, हमने इसकी प्रोसेस को इलाबोरेट किया विद द हेल्प ऑफ टैरो, ओके। सो अब मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशंस बताऊंगी, ठीक है।